بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا شخصیات نہیں ملک کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں۔ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داریاں دینے کی تجویز ہے۔ جن کمانڈرز نے بھارت کے خلاف جنگ کی قیادت کی وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ دنیا بھر میں تاحیات ہے۔ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ ٹائٹل واپس لے سکے۔ وفاقی آئینی عدالت کی تجویز بل کے ذریعے آج ہم لے آئیں۔ اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کسی جج کو بھیجنا ہے، یہ معاملہ بھی JCP اس کے سپرد کر دیا جائے۔ مئی 2025 بھارت نے ایک ڈھونگ رچا کے پاکستان کی علاقائی سلامتی کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی، پھر جو بفٹنگ رسپانس دیا فوج پاکستان نے، جن جوانوں نے یہ جنگ جیت کے دی ہے، جن کمانڈروں نے اس کو لیڈ کیا ہے، وہ قومی ہیرو ہیں۔ 243 میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل ہیں، مارشل آف دی ایئر فورس ہیں، یا ایڈمرل آف دا فلیٹ، ایک قومی ہیروز ہوں گے جن کو یہ ٹائٹل دیا جائے گا۔ اور یہ ٹائٹل ساری دنیا میں تاحیات ہے کہ ایک بندے نے اپنی ساری عمر دی، اس نے اس ملک کی خدمت میں جنگ جیتی، ایک نہیں کئی اور محاذوں پہ کامیابی حاصل کی، قوم نے اسے اس ٹائٹل سے نوازا، تو یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ ٹائٹل واپس لے لیں۔ یہ اس ایوان کا اختیار ہے۔ یہ دونوں ایوان جوائنٹ سٹنگ میں بائی ووٹ اس کو کر سکتے ہیں، جو صدر کو مؤاخذہ کرنے کا طریقہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا۔ اعلیٰ فوجی افسروں کے خلاف عدالت کارروائی نہیں کر سکے گی۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ۔ آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا، جبکہ چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ آرٹیکل 148 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسروں کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. وفاقی حکومت کی مجوزہ 27ویں ترمیم آرٹیکل 243 اور 248 میں رد و بدل کے بعد فوجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں۔ اعلیٰ فوجی افسروں کو قانونی کارروائی سے بھی تحفظ مل جائے گا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے تحت صدر مملکت چیف آف آرمی اسٹاف کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنائیں گے۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کا تقرر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کیا جائے گا۔ چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف ایئر اسٹاف کی تعیناتی بھی وزیر اعظم کی سفارش پر ہوگی۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر کی تعیناتی چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر وزیر اعظم کریں گے، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت کو اختیار ہوگا کہ کسی افسر کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پر ترقی دے۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تا حیات وردی اور مراعات حاصل ہوں گی۔ Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو حاصل استثناء اعلیٰ فوجی عہدوں پر بھی لاگو ہوگا۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس، ایڈمرل آف دی فلیٹ قانونی کارروائی سے محفوظ رہیں گے۔ آرٹیکل 248 کے تحت صدر یا اس کے مساوی اعلیٰ فوجی افسروں کو صرف پارلیمنٹ کے ذریعے ہٹایا جا سکے گا۔ کوئی بھی قانونی کارروائی صرف پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت کی منظوری اور آئینی طریقہ کار کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ عدالت یا کسی حکومتی ادارے کے ذریعے انہیں ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا۔ اعلیٰ فوجی افسروں کے خلاف عدالت کارروائی نہیں کر سکے گی۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ۔ آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا، جبکہ چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ آرٹیکل 148 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسروں کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life.
वफाकी हुकूमत की मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम आर्टिकल 243 और 248 में रद्दोबदल के बाद फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां, आला फौजी अफसरों को कानूनी कार्रवाई से भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के तहत सदर ममलिकत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाएंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का तकर्रुर वजीर आजम की एडवाइस पर किया जाएगा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वजीर आजम की सिफारिश पर होगी। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वजीर आजम करेंगे, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा कि किसी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मराहत हासिल होंगी। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. आर्टिकल 248 के तहत सदर ममलिकत को हासिल इस्तिस्ना आला फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर या उसके मसावी आला फौजी अफसरों को सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए हटाया जा सकेगा। कोई भी कानूनी कार्रवाई सिर्फ पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत की मंजूरी और आईनी तरीका कार के बाद ही मुमकिन होगी। अदालत या किसी हुकूमती अदारे के जरिए उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम कमेटी में पेश कर दी गई। तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुश रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने कमेटी में पेश की। तरमीम के तहत आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज वजीर आजम भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे में वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। असखुद नोटिस का इख्तियार खत्म होगा। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। अगर हाई कोर्ट का कोई जज तबादले का तस्लीम नहीं करेगा तो वो रिटायर तस्वुर होगा। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ की गई हैं। तरमीम के जरिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक भी शामिल है। वफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। तजवीज़ दी गई है कि वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के मुताबिक जजेस ट्रांसफर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपर्द किया जाएगा। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर जाना है उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। बलूचिस्तान में सूबाई असेंबली की नशिस्तों में इजाफे की भी तजवीज़ है। सूबाई काबीना के हजम और मुशीरों की तादाद में भी इजाफे की तजवीज़ है। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में एक ही वक्त में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक तरामीम की तजवीज़ शामिल है। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया। जराए का कहना है हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को वजीर आजम की जानिब से दावतनामे मौसूल हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे मदऊ किया गया है। वजीर आजम हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में अशाइया देंगे। कराची बिलावल हाउस में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी सदर जरदारी से मुलाकात की। मोहसिन नकवी और PPA क़यादत के दरमियान मुलाकात में 27वीं तरमीम के हुकूमती मुसव्वदे पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने सदर जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान को बनाने की दरख्वास्त की। PPP क़यादत ने मौलाना से बात करने, मुशावरत से मामला तय किए जाने की यकीन दहानी कराई। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुलाकात की। अहम मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाद अज़ां सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान PPP रहनुमा कादिर पटेल के बेटे की शादी में रवाना हो गए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने 27वीं तरमीम की मुखालिफत कर दी। सेनेटर ने कहा कि आज का दिन याद करके दुख और तकलीफ हुआ करेगी।
26वीं तरमीम को रिफाइन करके आइन का हिस्सा बनाया गया, आज उसे रिवर्स किया जा रहा है। हमारी सियासी शराफत का ये नतीजा निकला। आज का दिन भी उसी तरह का तारीखी दिन है जिसको याद करते हुए दुख और तकलीफ हुआ करेगी। 26वीं तरमीम यहाँ पे लाई गई थी, ने रिफाइन करके वो दस्तूर का हिस्सा बनाया 26वीं तरमीम की शक्ल में। सिर्फ 13 महीने के अंदर हम उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। डायलॉग के नतीजे में जो कमिटमेंट हम समझ रहे थे, उस सियासी शराफत का हमने मुजाहरा किया था, उस सियासी शराफत का आज क्या नतीजा निकला। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज से मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट आइन पर हमला आवर है, अवाम के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान 1971 के बाद एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पे खड़ा हो चुका है। जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं, ऐसी आईनी तरामीम जिन्होंने आइन की रूह मार डाली है। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है तहाई खतरनाक आईनी तरमीम जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसके खिलाफ स्टैंड ले, खड़े हों, बोलें। हमारे आइन के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, आइन पे हमारी अपनी पार्लियामेंट हमलावर है, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। कल रात से हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। हम उन्हें बताएंगे कि हम उनका रास्ता रोक सकते हैं, हम उन्हें बताएंगे पाकिस्तान की बात वही होगी जो पाकिस्तान के अवाम कहेंगे। इसलिए हम डायरेक्ट अवाम के पास जा रहे हैं। JUIF का मुश्तरका पार्लिमानी कायमा कमेटी से वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, JUI वालों को एक बार कायल कर लिया था। फिर आलिया कामरान ने बताया, पार्टी की हिदायत है, हमें बैठना है। वैसे सुबह से बैठी थी। अपोजिशन से भी कहा, तजावीज़ दें, मैं ना मानूं की बात मुनासिब नहीं। एक दफा बल्कि हमने उन्हें कन्विंस कर दिया था, फिर उनकी पॉलिसी, एक पार्टी की पॉलिसी, इसकी वजह से आलिया कामरान साहिबा ने कहा कि जी मुझे पार्टी की तरफ से हिदायत है कि हमने नहीं बैठना। बाकी सारी जमातें बैठी हुई थी। हमने तो अपोजिशन से भी दरख्वास्त की है कि आप तशरीफ लाएं, क्योंकि ये संजीदा बातें होती हैं। उनसे ड्राफ्ट शेयर किया हुआ है, तो फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर सजेशंस देंगे। आज भी उन्हें कहा था वो बात करें कल भी, लेकिन मैं ना मानूं कि अगर बात हो तो वो गैर मुनासिब है। JUIF ने कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कायमा कमेटी से वॉकआउट कर दिया। कामरान मुर्तज़ा और आलिया कामरान कमेटी इजलास से उठकर चले गए। आलिया कामरान कहती हैं, हमसे कोई मुशावरत की गई, ना मुसव्वदा फराहम किया गया। मेरा इनसे सवाल था, तरमीम के बाद आईनी अदालत की पगड़ी भारी होगी या सुप्रीम कोर्ट की? सिर्फ JUI के साथ कोई भी मुशावरत नहीं की गई थी, ना हमें किसी किस्म का कोई मुसव्वदा जो है फराहम किया गया था। जब मीटिंग स्टार्ट होगी उन्होंने कहा कि जी आप स्पेशल इन्वाइटी नहीं है, आप लोग इसके ऊपर डिस्कस करें। तो कामरान साहब ने एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए कहा, मैं इस प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ, मुसव्वदा भी सामने आया, हमें पढ़ने के लिए टाइम दें। किसी पार्टी मुशावरत के बगैर इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसको पास करूँ या मैं इसको अपोज कर। मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि जितनी देर मैं यहाँ पे बैठी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के की पगड़ी भारी होगी या आपके सुप्रीम कोर्ट के। बुलेटिन ने बात वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कहा, पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों बरादर ममालिक ने मुतादिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की यौम फतह की तकरीब से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस तकरीब में मौजूद थे। वजीर आजम ने कहा, मार के हक में पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा करते हैं। Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the 4-day war with India. Fearless command of Field Marshal Sayyid Asim Munir, Pakistan's highly professional armed forces delivered a bloody nose to our enemy with a precise and highly effective military punch that stunned the enemy into shock and disbelief. Shot down 7 highly sophisticated enemy aircraft with lightning speed. Common resolve for peace has most recently been tested in the case of Afghanistan. I am grateful to my dear brother President Recep Tayyip Erdogan for his invaluable contribution in facilitating the peace efforts between Pakistan and Afghanistan along with the state of Qatar. बाकू में आज़रबाईजान की यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड हुई। पाकिस्तान और तुर्की के दस्ते ने भी परेड की। आज़रबाईजान के सदर की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर ने शिरकत की। सदर इल्हाम अलीफ ने पाकिस्तान और तुर्की का भरपूर हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आज़रबाईजान इलाकाई अमन और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया उसको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज़रबाईजान के साथ यकजहती का इजहार किया।
combat transport helicopters carry the national flags of the Republic of Azerbaijan, Turkey and Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया गया। शहबाज शरीफ ने बरादराना ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में बदलने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर करीबी राबिता रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर एर्दोगान और अवाम को मुबारकबाद दी। वेलकम बैक। कॉल सेंटर्स के जरिए माहाना करोड़ों रुपए का भत्ता और गैर कानूनी धंधे के पुष्ट पनाही के इल्जामात। NCCI के मजीद 13 अफसरों के खिलाफ FI एंटी करप्शन सेल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर और आमिर नज़ीर भी नामजद हैं। डिप्टी डायरेक्टर सलमान अवान, हैदर अब्बास और नदीम अहमद खान, जबकि इंस्पेक्टर उस्मान बशारत, मोहम्मद बिलाल, सारिम अली, जहीर अब्बास न्याजी, मियाँ इरफान भी नामजद हैं। मुलजिमान ने करोड़ों रुपए लेकर गैर कानूनी कॉल सेंटर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मुकदमे में प्राइवेट कंपनी के मालिक हसन अमीर और चीनी शहरी का नाम भी शामिल है। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिमान छापों के बाद मुख्तलिफ जगहों पर जाकर डील करते। कॉल सेंटर्स से डील में खातून के जरिए भी पैसे वसूल किए गए। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं, हमारे 3 एजेंडे हैं, तालीम, तालीम और तालीम। फ़ख्र है कि WMO की तालीम के फ़रोग़ समेत दुनिया भर में समाजी सरगर्मियाँ जारी हैं। जद्दा में जारी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सालाना इजलास के तीसरे रोज़ भी दुनिया भर से आए हुए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। हमारे 3 एजेंडा है, एक एजुकेशन, दूसरा एजुकेशन, तीसरा एजुकेशन। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द मेमन कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने मुझे समझा, मेरी ज़रूरत है इनको। दुनिया भर में समाजी सरगर्मियां जारी रखने के अज़्म के साथ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामी कमेटी का इजलास खत्म हो गया। पहली बार 3 रोजा इजलास जद्दा में मुनक्किद किया गया। WMO के पैट्रन इन चीफ सलमान इकबाल कहते हैं, हमारे एजेंडे में तालीम का फरोग सर फहरिस्त है। 9 स्कूल्स की ऑनरशिप ले ली, 10,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली। सिर्फ मेमन नहीं, हर बच्चे को जदीद तालीम दी जाएगी। हमारे 3 एजेंडा है, एक एजुकेशन, दूसरा एजुकेशन, तीसरा एजुकेशन। हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन ना सिर्फ मेमन बल्कि जितने मुसलमान हैं बच्चे, वो एजुकेट करें अपने आप को और वो उस पोजीशन पे आए जहाँ डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे आए। सलमान इकबाल ने कहा, हमारा मकसद लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। हमारा एक ही मकसद है कि जिसको आज ज़कात दे रहे हैं ना, वो कुछ साल के बाद, कुछ अरसे के बाद ज़कात लेने वाला, ज़कात देने वाला हो। सलमान इकबाल ने वर्ल्ड पैट्रन इन चीफ मुकर्रर करने पर दुनिया भर की मेमन बिरादरी का शुक्रिया अदा किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द मेमन कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने मुझे समझा कि मेरी ज़रूरत है इनको। इन्होंने मुझे पैट्रन इन चीफ की एक पोजीशन दी है, एक क्रिएट की है पोजीशन, आज तक कभी WMO में क्रिएट नहीं हुई। इजलास में दुनिया भर से आए हुए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के नायब सदर महमूद शेखानी ने कहा, सलमान इकबाल की गैर मामूली समाजी खिदमात काबिल तारीफ हैं। पहले दिन जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग थी, सेकंड दिन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें सलमान भाई की खिदमात को देख के मैनेजमेंट कमेटी ने उनको पैट्रन इन चीफ के ऑनर से नवाजा। जिद्दा में WMO के 3 रोजा इजलास में सालाना रिपोर्ट, ऑडिट शुदा मालियाती गोशवारे और इंतजामी उमूर पर अहम फैसले किए गए। बर्फबारी ने सयाहती मकाम नारान की रौनकें फिर से लौटा दी हैं। सख्त सर्दी के बावजूद मुल्क भर से सयाह बर्फ के नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मौसम खज़ां में होने वाली 1 रोजा बर्फबारी ने नारां के हुस्न में तिरस्माती रंग भर दिया है। पुरकशिश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सियाह फैमिलीज के अमरान नारां पहुंचना शुरू हो गए। कराची से ललाल आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ स्नोफॉल भी हुई थी रात में और हमने बहुत एंजॉय किया और हमने पापा लोग के साथ बहुत खेला भी। दिन भर बर्फीले नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले सियाह नारां की सर्द रातों में बोन फायर से खुद को गरमा कर इन लम्हात को यादगार बना रहे हैं।
اس وقت ناران میں موجود ہیں، کھانا کھایا ہے اور ابھی بون فائر میں انجوائے کر رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، موسم بہت اچھا ہے، سارا دن ہم نے سنو فال انجوائے کی ہے اور ابھی بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ نارا میں ہونے والی حالیہ برف باری نے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچا تو سیاحتی سیزن کا دورانیہ بڑھنے سے مقامی کاروباری افراد بھی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ طاہر شہزاد تنولی، ایئر وائی نیوز، نارا، مانسیرا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔